मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। शिक्षक दिवस को मनाने हेतु हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को स्मरण करते हुए हम हर वर्ष उनका जन्म दिवस 5 सितंबर को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शिक्षा की महत्वता और उसकी अन्यवार्ता किसी भी देश की उन्नति पर सीधा प्रभाव डालती है। भारत की संस्कृति में नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा के मंदिर विश्व भर के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली के उदाहरण हैं। भारत में शिक्षा का महत्व न ही केवल मानव रूपी आकृतियों से लिया जाता है, अपितु इसकी सर्वोच्चता की झलक हमारे पूजन में भी दर्शाई जाती है। जहां धन की देवी मां लक्ष्मी, मर्यादा नरेश भगवान श्री राम और किसी भी शुभ कार्य के आरंभ के लिए श्री गणेश जी को जाना और पूजा जाता है, वहीं मां सरस्वती को शिक्षा एवं कला के लिए पूजा और जाना जाता है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे चीफ पेट्रन जी श्री प्रेम सागर गोयल जी को, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जी श्री मोहन गर्ग जी को, हमारे पेट्रन जी श्री सुरेंद्र पाल जी को, डायरेक्टर मेम्स प्रोफेसर CS शर्मा जी को, डायरेक्टर मेट प्रोफेसर ML गोयल जी को और हमारे डीन मेट्स डॉक्टर देसवाल जी को। तालियों की गूंज से इनका स्वागत कीजिए। A very warm welcome to all of you. Proceeding further with the program, I would now request our Director Sir, Professor ML Goyal ji, to please present a bouquet of flowers to our Chief Patron, Shri Prem Sagar ji Goyal. Please give a big round of applause to welcome our patron. I now request our Director MEMS, Dr. CS Sharma ji, to please present a bouquet of flowers to our Joint General Secretary, Shri Mohan Garg ji. I would request Dr. CS Sharma ji to please present a bouquet of flowers to our patron, Surinder Pal Gupta ji. Please give a huge round of applause. I would request Dr. SS Deswal ji to please present a bouquet of flowers to our Joint General Secretary, Shri Mohan Garg ji. Now we have our students who have put a cultural program for the teachers and everybody present here. I would now like to call upon Mr. Lavit from EEE MAIT to take over the stage. Lalit, please. Thank you, ma'am. Good morning, all of you. Culture Society of May is an amalgamation of various societies and college. Besides being an engineering college, various extracurricular activities are carried out through different and vibrant societies that are top-notch and fun at the same time. Some of the popular societies are IAM, the Dramatic Society, Aura, the Western Dance Society, FIM, Funk in Motion Dance, the Literary Umbrella, Literary Society, Expressions, Art Society, and Phoenix, Filmmaking Society, Music Society, and Fashion Society. Vakratunda Mahakaya, Surya Koti Samaprabha, Nirvignam Gurumudev, Sarvakayashu Sarvada. Now we go with the prayer dance set on Ganeshaya Dhimai. The dancers depicting this are Aparna, Neha, and Sukanya.
This dance is set with Kuchipudi dance form, an ancient dance form of the Indian society. The dancer Aparna is a classical dancer. She started this at a tender age of 4 years. Since then, she has performed at various platforms including Japan, prestigious stages like City 4 Auditorium, Indian Habitat Center, etc. Thank you. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीत
a beautiful and mesmerizing performance. We really appreciate and acknowledge the spirit of these students that in spite of the power cut, they continued and they came back very well. Please give them a big round of applause. Now we have amidst us Shri O.P. Goyalji. Now I request all of you to welcome him with a round of applause. And I request our director, Sir, Professor M.L. Goyalji, to present a bouquet to him. An applause, please. Dance is the hidden language of the soul. To dance is to spread an unknown magnetic form of energy that brightens up the ambience around you. Aura. The official Western Dance Society of May, continuing the legacy with decency, uplifting the glory of its name, meet Aura. Founded in 2007, Aura has been a consistent part of Culture Society of Maine for the last 7 years. They have won plenty of prizes till date, but winning third prize at IIT Delhi's Cultural Fest Rendezvous 2012 and first prize at NIF 2012 at Anugunj are some of the proudest moments for us. Consistency, determined effort, and continuous hard work are the key things Aura is known for. Also, they hit the nerves of people by their entertainment factor, which is one of the reasons they stand out from the crowd. So I call upon Aura. We killed him with the last one. Remix. DB, DS Brothers, Slow Riding, hold on, Big Fool. DJ Man, I wanna see you move. Shake, shake, now drop. Let your man say, move. Shake, shake, now drop. Let your man say, move. Shake, shake, now drop. Let your sister say, move. Shake, shake, now drop. Hold on. बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी चुन्निया सजा के वो देती वादे कल के मायरी मेरे हाथों में था उसका हाथ थी चाशनी सी हर उसकी बात Y'all ready for this? भारत भूमि पर अनेक विभूतियों ने अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उन्हीं में से एक महान विभूति शिक्षाविद, दार्शनिक, महान वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। उनकी मान्यता थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज के अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। आपका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सभी के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति जब 1962 में राष्ट्रपति बने, तब कुछ शिष्यों ने एवं प्रशंसकों ने आपसे निवेदन किया कि वे उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के ज्ञान के सागर थे। उनकी हाजिर जवाबी का एक किस्सा याद आता है। एक बार एक प्रतिभोज के अवसर पर अंग्रेजों ने तारीफ करते हुए एक अंग्रेज ने कहा, ईश्वर, हम अंग्रेजों को बहुत प्यार करते हैं। उसने हमारे निर्माण बड़े यत्न और स्नेह से किया है। इसी नाते हम सभी इतने गोरे और सुंदर हैं। उस सभा में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी उपस्थित थे। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, अतः उन्होंने उपस्थित मित्रों को संबोधित करते हुए एक मनगढ़ंत किस्सा सुनाया। मित्रों, एक बार ईश्वर को रोटी बनाने का मन हुआ। उन्होंने जो पहली रोटी बनाई वो जरा कम सीखी, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का जन्म हुआ। दूसरी रोटी कच्ची न रह जाए, इस नाते भगवान ने उसे ज्यादा देर तक सेका और वो जल गई। इससे निग्रो लोग पैदा हुए। मगर इस बार भगवान जरा चौकन्ने हो गए। वो ठीक से रोटी पकाने लगे। इस बार जो रोटी बनी वो ना ज़्यादा पकी थी ना ज़्यादा कच्ची, ठीक सीखी थी और परिणाम स्वरूप हम भारतीयों का जन्म हुआ। ये किस्सा सुनकर उस अंग्रेज का सिर शर्म से झुक गया और बाकी लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। मित्रों, ऐसी संस्कारित एवं शिष्ट माकुल जवाब से किसी को आहत किए बिना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भारतीयों को श्रेष्ठ बना दिया। आपका मानना था कि व्यक्ति निर्माण एवं चरित्र निर्माण में शिक्षा का विशेष योगदान है। वैश्विक शांति, वैश्विक समृद्धि एवं वैश्विक सौहार्द में शिक्षा का महत्व अति विशेष है। महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए मित्रों, हम शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर हम सब ये प्रण करें कि शिक्षा की ज्योति को ईमानदारी से अपने जीवन में आत्मार्पण करेंगे, क्योंकि शिक्षा किसी को भेद नहीं करती। जो इसकी महत्व को समझ जाता है वो अपने भविष्य को सुनहरा बना लेता है। Now, the next performance is done by Sri Hari and his co-group. Sri Hari is basically a classically trained singer. अंबर पे मिलते हैं कदमों के निशान, तेरे ही है शान। खिड़की पे लिखे कोई उसकी बूंदों से तेरा नाम, न खेलो सनम तेरे ही है धड़कन ये मेरे दिल की पूछे रे तेरे दिल से कि सचमुच क्या है तू दुनिया में। ओ अंबर पे मिलते हैं कदमों के निशान, तेरे ही हर शान। खिड़की पे लिखे कोई उसकी बूंदों से तेरा नाम। लिखा है रेत पे प्यार का नगमा,
संग संग इस ख्वाब को सच करके ही जाना रे धड़कन ये मेरे दिल की पूछे रे तेरे दिल से कि सचमुच क्या है तू दुनिया में। ओ अंबर पे मिलते हैं कदमों के निशान तेरे ही हर शाम खिड़की पे लिखे कोई उसकी बूंदों से तेरा। Thank you. She told the children a lie. Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same. But that was impossible because there in the front row, slumped in a seat, was a little boy named Teddy Stoddard. Mrs. Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he didn't play well with other children and that his clothes were messy and that he constantly needed a bath. And Teddy could be unpleasant. It got to the point where Mrs. Thompson would actually take delight in marking his papers with a broad red pen, making a bold crosses and then putting a big F at the top of the paper. At the school where Mrs. Thompson taught, she was required to review each child's past records and she put Teddy's off until last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise. Teddy's first grade teacher wrote, "Teddy is a bright child with a ready laugh. He does his work neatly and has good manners. He is a joy to be around." His second grade teacher wrote, "Teddy is an excellent student, well liked by his classmates, but is troubled because his mother has a terminal illness and his life at home must be a struggle." His third grade teacher wrote, "His mother's death has been hard on him. He tries to do his best, but his father doesn't show much interest, and his home life will soon affect him if some steps aren't taken." Teddy's fourth grade teacher wrote, "Teddy is withdrawn and doesn't show much interest in school. He doesn't have many friends and sometimes sleeps in class." By now, Mrs. Thompson realized the problem and she was ashamed of herself. She felt even worse when the students brought her Christmas presents wrapped in beautiful ribbons and bright papers, except for Teddy's. His present, which was clumsily wrapped in the heavy brown paper that he got from a grocery bag. Mrs. Thompson took pains to open it in the middle of other presents. Some of the children started to laugh when she found a rhinestone bracelet with some of the stones missing and a bottle that was 1/4 full of perfume. But she stifled the children's laughter when she exclaimed how pretty the bracelet was, putting it on and dabbing some of the perfume on her wrist. Teddy Stoddard stayed after school that day just long enough to say, "Mrs. Thompson, today you smelled just like my mom used to." After the children left, she cried for at least an hour. On that very day, she quit teaching, reading and writing and arithmetic. Instead, she began to teach children. Mrs. Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind comes to come alive. The more she encouraged him, the faster he responded. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest children in the class, and despite her lie that she would love all the children the same, Teddy became her teacher's pet. A year later, she found a note under her door from Teddy, telling her that she was still the best teacher he ever had in his whole life. 6 years went on, 4 years went on, and every year he put a note under the door that she is still his best teacher. Now, Teddy was Dr. Theodore F. Stoddard. The story doesn't end here. You see, there was yet another letter that spring. Teddy said he had met this girl and was going to be married. He explained that his father had died a couple of years ago and he was wondering if Mrs. Thompson might agree to sit in the place at the wedding that was usually reserved for the mother of the groom. Of course, Mrs. Thompson did. And guess what?
She wore the bracelet, the one with several rhinestones missing. And she put on the perfume that Teddy remembered his mother wearing on the last Christmas. As she made sure she was wearing the perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas, they hugged each other. And Dr. Stoddard whispered in Mrs. Thompson's ear, "Thank you, Mrs. Thompson, for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference." Mrs. Thompson, with tears in his eyes, whispered back, she said, "Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn't know how to teach you anybody until I met you." Thank you. That was the story. Well, the next performance is by Chavi Chadda, the first year MBA student who is going to perform Bharatanatyam. ते मेरे संहारत है चेतना के दीप मौन प्रभावत है जगत के प्राणम प्रगतिरत चक्र है हे उषा किरण है ते मेरे संहारत है
Indian heritage is so flexible that from Kuchipudi, that was the first performance, to the Footloose, and now to the Bharatnatyam, and then the Shastriya Sangeet by Sri Hari. We all just gel up and we all just perform it just so smoothly like the drift of water. हमारे समक्ष अभी उपस्थित हैं श्री आचार्य विनोद जी, जो खुद अपने परिवार समेत वैदिक ज्योतिष से 150 साल से जुड़े हुए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आचार्य विनोद जी को कि वह मंच पर आकर अपने विचारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। तालियों की गूंज से स्वागत कीजिए आचार्य विनोद जी का। यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों का, सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे अभी कुछ समय पहले ही मोहन जी का फ़ोन आया, गर्ग साहब का, कि आपको आना है और 2 बातें रखनी हैं। तो मैं बैठ के, जैसा कि रूटीन है हमारा, कुंडलियाँ देखते हैं सारा दिन, तो बैठा हुआ था, तो मैं बस सीधा सब कुछ निपटा के आप लोगों के बीच आ गया। एक बार हमें मौका मिला पीछे 5 सितंबर को, यही दिन जो आता है टीचर्स डे, जो गुरुओं का दिन है, बड़ा महान दिन है। उस दिन चूंकि जन्माष्टमी भी थी, तो जिस प्रकार से सांस्कृतिक दोहे जो हमारी परंपरा से चले आते हैं, हम उनको रूटीन में सुनते हैं, लेकिन इस बार एक दोहा उस समय पर बहुत ही उसका अर्थ और भी निखर के सामने आ गया। चूंकि जन्माष्टमी भी थी तो गोविंद का जन्म हुआ उस दिन, और चूंकि गुरुओं का दिन था, टीचर्स डे भी था, तो अचानक ही एक बात चल पड़ी कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। एक ही दिन दोनों चीज़ों के अर्थ निकल के सामने आ गए। और आज मेरा सौभाग्य है कि दोबारा फिर से हमें वही दिन दोबारा मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुओं की जो महिमा है, हमारी सनातन परंपरा से हमें गुरुओं की ऐसी महिमा देखने को मिलती है। ख़ास तौर पे हमारी हिंदू संस्कृति में गुरुओं को ईश्वर के समकक्ष रखा गया, चाहे वो भक्ति काल रहा हो या उससे भी पुरातन काल में हम चले जाएं। बिना गुरुओं की वंदना किए, बिना गुरुओं को सम्मान दिए, किसी भी विद्या को फलीभूत होते हुए हमारे यहाँ पर नहीं देखा गया, ना ही ऐसी कोई कल्पना की गई। मुझे याद आता है कि जब हम पढ़ा करते थे उस वक्त, क्योंकि ज्योतिष विषय ऐसा है कि जहाँ कई बार ये भी भ्रम होता है मन में कि क्या कहीं हमको ये विषय भाग्यवादी तो नहीं बनाता। तो ऐसे ही एक हमारे गुरुदेव ने एक बार एक छोटी सी हमें एक दृष्टांत सुनाया कि ठीक है, आपके हम एक पुनर्जन्म की संस्कृति को मानते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि सिर्फ देह ही जन्म नहीं लेती, शरीर का ही जन्म नहीं होता, शरीर के साथ हमारे कर्मों के पुंज के रूप में एक आत्मा का भी जन्म होता है। और हमारा ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये व्यक्ति को भाग्यवादी होना नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि अगर आपको आने वाले समय में किसी कठिनाई को आप महसूस करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहें और पुरुषार्थ के मार्ग पर और भी जोर से डटकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में एक कथा सुनने को आई कि एक बार भगवान शिव और पार्वती के समय की बात है कि ऐसा उद्घोषणा हो गई सब तरफ कि पूरे देश में अकाल जैसी स्थिति आ गई। और ऐसा भी बात प्रचलन में आई कि अब ये अकाल उस वक्त समाप्त होगा जब आज से 12 साल बाद भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। तो सब लोगों ने, किसानों ने, ये बड़े सुंदर तरीके से हमें ये जो कथा है भाग्य और पुरुषार्थ की बात को हमारे सामने क्लियर करती है कि सब किसानों ने फिर अपना हल छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि भाई अब तो 12 साल तक कोई संभावना नहीं है बारिश आने की, क्योंकि भगवान शिव डमरू बजाएंगे तभी बारिश आएगी। तो सबने अपने पुरुषार्थ को त्याग दिया। लेकिन एक किसान पहले की ही तरह प्रतिदिन उठ के अपने खेत में जाता, सारा दिन वहां पर वो हल चलाता और शाम को वापस आ जाता, जबकि जानता वो भी था कि बारिश आने की अगले 12 साल तक कोई संभावना नहीं है। एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव और पार्वती आकाश मार्ग से कहते हैं विचरण करते हुए जब उस तरफ से निकले,
जिस तरफ उस किसान का खेत था, तो माँ पार्वती को बड़ी हैरानी हुई कि प्रभु सब तरफ ये चर्चा आम है कि आप 12 साल बाद जब अपना डमरू बजाएंगे तभी बारिश आनी है, फिर भी ये किसान कैसे कर्मठ होके लगा हुआ है। तो भगवान ने कहा कि आप स्वयं ही जाके इसका निरीक्षण करें और पता करें कि कहानी क्या है। तो कहते हैं जब माँ पार्वती ने उनको जाके पूछा कि भाई क्या आप नहीं जानते कि भगवान शिव 12 साल बाद डमरू बजाएंगे तब बरसात आनी है, तब आपके खेत में फसलें लहलहाएंगी। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बड़ा मार्मिक जवाब दिया, जो हमारे आचार्यों ने हमें ये कथा इसीलिए सुनाई थी कि कभी हम कर्म के पथ से, पुरुषार्थ के पथ से डिगे ना। तो उस किसान ने कहा कि मुझे पता है कि भगवान शिव 12 साल बाद डमरू बजाएंगे तभी बारिश आएगी, पर मैं ये सोचता हूँ कि 12 साल अगर मैं खाली रहा, मेरी वो मेहनत करने की आदत ना चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हल चलाना ही भूल जाऊं। इसीलिए मैं प्रतिदिन आके अपना अभ्यास जारी किया हूं, मैं अपने कर्म पथ पे हूं, आगे प्रभु ने जब फल देना है तब देना है। तो कहते हैं कि माँ ने फिर ये कथा जाके भगवान शिव को बताई कि प्रभु उसका ये कहना है कि आपने तो 12 साल बाद डमरू बजाना है, कहीं मैं हल चलाना भूल गया तो फिर आगे मेरे जीवन का क्या होगा, मैं आलस्य ना आ जाए, मुझे प्रमाद ना घेर ले, इसलिए मैं प्रतिदिन अपने अभ्यास को बनाए हुए हूँ। तो कहते हैं कि फिर भगवान शिव ने कहा कि पार्वती ये बात तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि 12 साल बाद मैं ही डमरू बजाना भूल जाऊं। तो फिर कहते हैं सुन के भगवान ने डमरू बजाया और बारिश आ गई, उसी वक्त बारिश आ गई। तो कहने का मतलब ये है, ये कथा हमें बताती है कि जब भी कभी हम पुरुषार्थ के मार्ग से च्युत होते हैं, पुरुषार्थ के मार्ग को छोड़ते हैं, भाग्यवादी बनने की तरफ हम जाने लगते हैं, तो कैसे एक गुरु, कैसे एक टीचर हमें उस समय संभालता है इन दृष्टांतों के द्वारा। जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई मुसीबत आती है, तो हमें अपनी कक्षा में अपने शिक्षकों द्वारा कहे गए बहुत सारे वाक्य अचानक ही दिमाग में आ जाते हैं। हम भी अपने बचपन को याद करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि वो मैम ऐसा कहा करते थे, वो सर ऐसा कहा करते थे, और उस वक्त हमें बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का हल मिल जाता है। अपने सर के, अपनी मैम के, अपने गुरु के, अपने शिक्षक के एक छोटी सी सुनाई हुई किसी दृष्टांत से हमें अपने जीवन में एक फैसला लेने का अवसर मिल जाता है। मुझे याद आता है कि हमारे सर जब हम क्लास में पढ़ा करते थे तो एक कथा कहा करते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि कई बार हम कोई विषय चुन भी लें, उसके बाद भी बीच बीच में कभी हमें कंफ्यूजन आ जाती है कि शायद मैं इस विषय के लिए हूँ या नहीं हूँ, या अक्सर देखते हैं कि कई तरह के विरोधाभास हमारे सामने आ जाते हैं। तो हमारे सर एक कथा कहा करते थे कि एक सेठ थे जो कि ऐसी ही किसी दुविधा में फंसे हुए सड़क पर चले जा रहे थे। तो जब वो थोड़ा आगे पहुंचे चलते चलते अपनी उसी सोच, उसी दुविधा में कि ये करूं या वो करूं, ये निर्णय लूं या वो निर्णय लूं, वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गए। तो वहां एक व्यक्ति जो सफाई कर्मचारी था, वो सफाई कर रहा था, वहां वो झाड़ू लगा रहे थे। तो उन्होंने जब उनको आते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि लाला जी या तो इधर हो जाइए या उधर हो जाइए, या तो इस तरफ आ जाइए या उस तरफ आ जाइए। उन्होंने तो अपनी ओर से कहा था कि मुझे सुविधा हो, मेरे कार्य में कोई बाधा ना आए, लेकिन उनको तुरंत सूत्र मिल गया उस व्यक्ति की बात को सुन के कि वाकई मेरी समस्या तो ये है कि अगर मैं एक तरफ हो जाऊं तो मैं अपनी समस्या से मुक्ति प्राप्त कर लूं। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स को याद आती हैं जो उनके शिक्षक उनको बचपन में सुनाया करते हैं। और जहां तक हमारे ज्योतिष का सवाल है तो मैं इसके बारे में भी दो बातें कहना चाहूंगा कि ज्योतिष में आप देखते हैं, अगर आप कोई ज्योतिष को मानता हो तो जब हम किसी को जन्म कुंडली दिखाते हैं तो उसमें 12 खाने होते हैं, 12 भाव। इसको ज्योतिष की भाषा में 12 भाव कहा जाता है। अलग अलग भावों से हम जीवन के अलग अलग विषयों की स्टडी करते हैं। जैसे पंचम भाव है आपकी बुद्धि, संतान इत्यादि, नवम भाव है आपके पिता के सुख, भाग्य इत्यादि को देखते हैं। उसमें महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण
भाव माने जाते हैं वो केंद्र के 4 भाव माने जाते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, जिनको केंद्र स्थान कहा जाता है। ज्योतिष में एक बात आती है कि किम कुर्वन्तु अन्य ग्रह यत् केंद्रे बृहस्पति, कि जिस जातक की कुंडली में केंद्र स्थानों में बृहस्पति उपस्थित है, बाकी के ग्रह उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। ये एक तथ्य आता है ज्योतिष का। केंद्र स्थानों में बृहस्पति की उपस्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है ज्योतिष में। और दूसरी इसमें जो एक मजेदार बात यह है कि ज्योतिष में गुरु तत्व, जो एक गुरु तत्व है, वो बृहस्पति ग्रह को ही उससे संबोधित करते हैं कि जितने भी हमारे गुरु हैं, हमारे आसपास जितने भी शिक्षक हैं, वो सब के सब बृहस्पति देव का रूप हैं। जैसे स्त्रियों की पत्री अगर देखें तो मंगल को हम कहते हैं कि इनके लिए पुरुष का रूप ये मंगल है। इसी तरह सार्वभौमिक तथ्यों में ज्योतिष के बृहस्पति को गुरु तत्व की उपाधि दी जाती है। तो ये तो इसका एक साधारण अर्थ हुआ कि केंद्र स्थान में अगर बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्ति का अन्य ग्रह, अन्य समस्याएं उसका क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन अगर हम इसको साधारण जीवन में अपने लें तो वही गुरु तत्व अगर हमारे जीवन के केंद्र में है, अगर हमारी जीवन की परिधि के केंद्र में, उस व्रत के केंद्र में यदि कोई गुरु है, यदि किसी गुरु से जुड़ी हुई कोई देशना है, तो मुझे लगता है कि हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि हम गुरुओं को जो ब्रह्म के तुल्य, जैसे सहजो भाई कहती है कि हरि को तजूं पर गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, कि मैं एक बार को ईश्वर को छोड़ सकती हूँ, लेकिन जिस ईश्वर से मुझे गुरु ने मिला दिया मैं उसको नहीं छोड़ सकती। ये तो एक आध्यात्मिक तथ्य है। लेकिन जीवन के भी संबंध में देखें तो जो हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो वाणिज्य हो, इंजीनियरिंग हो या विज्ञान का कोई विषय हो, उसमें भी गुरु के प्रति जो श्रद्धा का भाव अपने आप गुरु की तरफ से हमें न जाने कितने कितने अच्छे फॉर्मूलाज, न जाने कितनी अच्छी अच्छी विधियों का वो निर्माण कर देता है। गुरुओं के प्रति अगर हमारी श्रद्धा है तो उसी अनुपात में, बल्कि उससे ज्यादा ही गुरुओं की तरफ से भी हमें सीखने को मिल जाता है। तो ये 2-3 बातें थी जो आज टीचर्स डे पे मेरा मन हुआ तो मैंने शेयर करी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ जितने भी गणमान्य लोग बैठे हैं, और आदरणीय मोहन गर्ग जी का भी धन्यवाद करता हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम दिया बोलने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आचार्य विनोद जी का, जिन्होंने हमारे समक्ष एक शिक्षक और शिक्षा का महत्व हम सबको बताया। Like a teacher is a center. If we are taking circumference of life, the teacher is the center of it. Thank you so much, sir, for sharing your views with us. Thank you so much. Thank you, ma'am. The whole problem can be stated quite simply by asking, is there any meaning to music? My answer to that would be no. And can you state in so many words what the meaning is? My answer to that would be definitely not. Right now, to show this amalgamation between melody and rhythm, we have with us Abhishek Patil and his team from AIMS. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक बॉलीवुड सॉन्ग के साथ, जीना जीना।
तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना। ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने करी है। तू जो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। थैंक यू। अगला सॉन्ग रूबरू। अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं। हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया वो खिल गया। वो लोहा था पिघल गया खिंचा खिंचा मचल गया सितार में बदल गया रूबरू। प्लीज साथ में गाइए। रोशनी रूबरू रोशनी धुआं छटा खुला गगन मेरा नई डगर नया सफर मेरा जो बन सके तो हम सफर मेरा नजर मिला जरा। धुआं छटा खुला गगन मेरा नई गली नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा। ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ क्या तेरा
थैंक यू। मैं शिक्षकों के लिए एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। आदर्शों की मिसाल बनकर बाल जीवन संवारता शिक्षक, सदा बहार फूल सा खिलकर महकता और महकाता शिक्षक, नित नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाता शिक्षक, संचित ज्ञान का धन हमें देकर खुशियाँ खूब मनाता शिक्षक, पाप व लालच से डरने की धर्मीय सीख सिखाता शिक्षक, देश के लिए मर मिटने की बलिदानी राह दिखाता शिक्षक, प्रकाश पुंज का आधार बनकर कर्तव्य अपना निभाता शिक्षक, प्रेम सरिता की बनकर धारा नैया पार लगाता शिक्षक। वाह सुकन्या, काफी अच्छी कविता थी। A famous man once quoted, "A teacher must be willing to show their students how much they care." Similar is the affection, I think, we too face for our teachers too. We dance to the tunes they play, and we do it blindly because we know it's worth it. A teacher helps the students find the song in their heart, the beat in their feet, and the passion for life. To show this we have today with us, Funk in Motion, the team from May. The team specializes in choreography using urban hip-hop as its base. They are known for their energy and the style of execution, which often involves interacting with the audience to the dance. They strongly believe in the ideology that a person is the happiest when he enjoys what he does. Continuing on this path, they have represented May in various fest, art competitions and bagged many laurels in many prestigious ones like St. Stephen's, Miranda, National Law University, etc. And the most recent achievement the members added was securing 3rd position at the K-pop India level and 1st at the Delhi level. We present to you Funk in Motion. You ever prayed for something your whole life? I mean, all you dreamed about was this one thing. I mean, you know it's coming. You have faith in all that. But sometimes you second guess yourself. You ready? आजा आजा अपने साथ शर्माना, धीरे से दिल को चुराना, मुझसे प्यार में कितना जाने जाना, मुझसे मिलकर तुमको है बताना। दिल तेरा दिल लेना, दिल तेरा दिल लेना, ऐसा ना करा, ऐसा ना करा, ऐसा ना करा। Like this.
I'm gonna jack time, got shovels, all of these one, I'm gonna check out my brother, my friend, brother, casa, brother. Follow me, I will run a plan, I run a game, and I'll sit down. They can never manage me, you better for no apology. Pick 'em out the panic, a little minute, cause it gotta be funny. I'm jealous, cause I'm an oddity. Y'all wanna check out, looking better than mama, cause I can pop out your pop, cause I'm poppin', I'm poppin', in the top, I hip hop and watch them, make 'em rock, but it's a stop, a shot was popping off the whole white chocolate.